بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت فنا الفنا، اس فنا کا علم بھی بعض اوقات نہیں ہوتا۔ یہ فنا الفنا ہے، اس کو بقا بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بے خودی جو فنا کہلاتی تھی جاتی رہی۔ فنا صفت بشریہ کو قرب نوافل و فنا ذات کو قرب فرائض بھی کہتے ہیں، یعنی جیسا التفات اور استحضار غیر کا پہلے تھا وہ نہ رہا، غیر سے ذہول ہو گیا، پھر اس میں کوئی مجذوب ہو جاتا ہے، کسی پر شکر غالب ہو جاتا ہے۔ نیز فنا کے ازداد یعنی افعال حسنہ کا طبعی بن جانا اور اخلاق حمیدہ میں ملکہ رسوخ ہو جانا، اور اسی کو بقا بھی کہتے ہیں۔ طریق تحصیل فنا الفنا، ذکر و فکر میں مداومت رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف مستقلاً مشغول ہو جائے، ہر وقت یہی چکر رہے، ہر وقت اسی کے دھیان میں رہے، ہر وقت اسی کام میں رہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں فنا ہو گیا۔ جس کی مثال کل آپ کو بتائی تھی کہ کسی عورت کے ساتھ عشق میں، محبت میں، دھیان میں، چکر میں آدمی بہت زیادہ متوجہ ہو جائے اور بالکل دوسری کسی چیز کی طرف اس کو دھیان نہ ہو، تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو عورت میں پاگل ہو گیا، گانڈا ہو گیا، عورت کی طرف، کوئی کرسی کی طرف، کوئی پیسے کی طرف۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہوتا ہے نا، اس کو فنا سے تعبیر کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں فنا ہو گیا، مشغول ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو خاص تعلق ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرے گا۔ اس کو فنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اس سے ایک قدم آگے ہے اور اس کو کہا جاتا ہے فنا الفنا، یعنی فنا میں بھی وہ فنا ہو گیا، اس کو فنا الفنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ آدمی اب اللہ جل جلالہ و من والوں میں اتنا متوجہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسری چیز کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کسی دوسری چیز کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے، اس میں وہ اتنا ہو گیا کہ بس وہ نہ معمولات چھوٹتے ہیں نہ بلکہ معمولات کا نہ کرنا اب اس کو بھاری پڑ جاتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اسی میں مصروف رہتا ہے۔ تو اس کو فنا الفنا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک اب اس میں یہ انتہائی درجے پر پہنچ گیا، اعلیٰ درجے پر۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ اس میں پھر وہ مجذوب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں وہ اتنا مصروف اور اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ مجذوب ہو گیا۔ مستقلاً بزرگوں کے قصے تم سنو گے تو اس میں مجذوبوں کے بہت سارے قصے آتے ہیں، وہ یہ حضرات ہے جو فنا سے بھی فنا ہو گئے، سمجھ میں آئے نہیں۔ اور ان کے علاوہ اب جو بھی دین کے کام ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، وہ سارے کے سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب نہ تو دل میں مال کی محبت ہے، نہ عورت کی محبت ہے، نہ دنیا کی محبت ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کی طرف محبت ہے۔ ہر آن اور ہر لمحے وہ ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا دل ذکر کرتا رہتا ہے۔
बल्कि بعض मरतबा तो बदन का बाल सब जिक्र में मसरूफ होते हैं। समझ में आया नहीं? इसको फनाउल फना से ताबीर किया जाता है। बहरहाल फिर पढ़ लो फनाउल फना में क्या कहा। इस फना का भी इल्म बाज औकात नहीं होता, इसका इल्म भी बाज़ मरतबा नहीं होता कि ये फना में है या फनाउल फना में है। जी, इसको बका भी कहते हैं। और इसी को बका भी कहते हैं। अगर फना से भी फना हो गए तो बाकी बस अल्लाह तबारक व तआला के साथ है और कोई नहीं। और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ लग गया वो बका में पहुंच गया। जी, ये वो बेखुदी है जो फना कहलाती थी जाती रही। फनाए सिफत बशरिया को कुर्ब नवाफिल व फनाए जात को कुर्ब फराइज भी कहते हैं। फिर पढ़ो इसको। फनाए सिफात बशरिया को सिफात बशरिया, इंसान की जो सिफात है उस सारी सिफातें फना हो गई, उसको कुर्ब नवाफिल कुर्ब नवाफिल की वजह से हर वक्त गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में है वो। व फनाए जात को और फनाए जात को यानी आदमी बस हर वक्त उसी के तस्वुर में रहेगा, उसी के ख्याल में रहेगा, उसके अलावा किसी दूसरी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। कुर्ब फराइज भी कहते हैं। उसके कुर्ब फराइज कहते हैं, यानी अब वो फराइज के दर्जे पर पहुंच जाएगा। जो चीज फर्ज है उसके ऊपर है, ये बहुत ही आला दर्जा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बिल्कुल इंतहाई दर्जा है। जी, यानी जैसा इल्तिफात और इस्तेहजार गैर का पहले था वो न यानी रहा। जिस तरीके से इस वक्त खाने की तरफ, बीवी की तरफ, मकान की तरफ, पैसे की तरफ या दुनिया की किसी चीज की तरफ पहले जो था, अब इसको उसकी तरफ कोई ख्याल ही नहीं रहेगा। समझ में आया नहीं? बल्कि बाज मरतबा तो वो अपने बेटों को भी अपने जहन से निकाल देता है। वो पूछता है भाई तेरा नाम क्या? मैं तो आपका बेटा हूँ। कौन है? फलाना। अच्छा बेटा है, यानी उसका दिमाग सबसे हट गया वो। लेकिन ये बड़े लोगों की बात है। जी, गैर से ज़ुहूल हो गया। गैर से ज़ुहूल हो गया। जी, फिर इसमें कोई मजजूब हो जाता है। बस इसमें फिर बाद मरतबा तो अब तुम उसको मजजूब से ताबीर करो। समझ में आया नहीं? बस वो अल्लाह ही की याद में है। जी, नीज फना के अजदाद यानी अफ़आल हसना का तबई बन जाना। अब फना के जो याद है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे अमल, अच्छी अच्छी चीजें, अखलाक हसना गोया कि उसकी तबीयत बन गई। अब वो तबीयत के एतबार से काम करेगा। पहले नफ्स को दबा कर काम करना पड़ता था, अब ये नफ्स खुद ही ऐसा काम करना शुरू कर देगा। और अखलाक हमीदा में रसूख हो जाना। अखलाक हमीदा जितने भी है वो सब अब रासिक हो गए। इस वक्त मसलन एक सलाम करना है, बार बार तुमको कहता हूँ कि सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, कभी करते हो कभी भूल जाते हो। और फिर अब जबान सलाम अब उसकी जबान पर आ जाएगा। जहाँ भी किसी को देखेगा फौरन जबान अस्सलाम वालेकुम कहना शुरू कर देगा। एक मिसाल है। इस तरीके से दूसरी चीज है। जी, और इसी को बका भी कहते हैं। तरीके तहसील फनाउल फना जिक्र फिक्र में मुदावमत रखना। जिक्र में तो मुदावत है, 5 3 तस्वीर भी नहीं पढ़ी जाती, 12 तस्वीर भी नहीं पढ़ी जाती, तो मुदावमत। और फिक्र सोचना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात, अल्लाह तबारक व तआला की चीज़ें। हम सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की आँखों से फ़ायदा उठा रहे हैं, सारी ज़िंदगी कानों से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक मौलवी साहब थे, उनकी किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पर जाने लगे, और डायलिसिस की जब तकलीफ हुई तब वो कहता है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत थी जो अल्लाह ताला ने किडनी अता की थी। अब वो किडनी खत्म हो गई तब उसकी कदर हुई। तो ऐसी तो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं। तो अब हम लोग तो उस नेमतों की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। लेकिन अब ये आदमी है हर नेमत को समझेगा कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतों से हमको नवाजा है। जी, यहाँ तक अखलाक हमीदा का बयान था, अब आगे अखलाक रजीला को बयान किया जाता है। अखलाक हमीदा इसका ताल्लुक दिल के साथ है। थोड़ी सा दिल को तवज्जो दिलाओ, थोड़ा सा दिल को मुतवज्जे करो, थोड़ा सा दिल को माइल करो, तो बड़ी आसानी के साथ ये अवसाफ तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। इस वक्त बुखल है, समझना है नहीं, और सखावत
یہ اخلاق حسنہ ہے. تھوڑی سی دل میں ذرا ہمت آ جائے تو ایسے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، دیکھو نکالا سمجھ میں آیا نہیں. لیکن جب سخاوت دل میں آ جائے گی، بھائی میرے پاس میرے 5 دن کو میرے 10 دن کو، اس طریقے سے ہر چیز میں دل کا، اس لیے کہ اس میں دل کو متوجہ کرنا ہوتا ہے. ہمارا تو دل بھی دنیا کی طرف متوجہ ہے اور نفس بھی دنیا کی طرف متوجہ ہے، اور سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے وہ شیطان، اس کا سردار ہے. اس لیے ساری چیزیں مشکل ہی ہوتی ہیں. بہرحال آج یہاں سے اب اخلاق رذیلہ کو بتاتے ہیں. اخلاق رذیلہ کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. ہر رذیل چیز، ہر گندی چیز، ہر بری چیز، ہر ناپسند چیز نفس کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. نفس کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. جی حرص. ارشاد باری ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اپنی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو حرص بتا دے. حرص مانے لالچ. لالچ میں کیا بتاؤں، تو اپنا بھائی ہے لالچ. اچھی گھڑی دیکھی ماشاء اللہ، اچھی بیوی دیکھی ماشاء اللہ، اچھا مکان دیکھا ماشاء اللہ، سمجھ میں آئے نہیں. تو یہ حرص ہے. سب سے پہلے اس حرص کو نکالنی چاہیے. جب حرص ہوگی تو آدمی کو کبھی چین نہیں آئے گا. جس کی بھی جو بھی چیز دیکھے گا اچھی چیز لگے گی اس کو، وہ اچھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. حرص یعنی اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف مت بڑھاؤ جس سے ہم نے نفع دیا ہے ان کافروں کے مختلف گروہوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں جس کو ذکر کیا، کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا رکھی ہے، دنیاوی نعمتیں، دنیا کی رحمت، دنیا کی ساری چیزیں ان کو دنیا ہی دنیا میں ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے. دنیا ان کے لیے جنت ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتیں، مال، دولت، مکان، جائیداد، گاڑی اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے. استعمال کر لو، آخر تو تمہارا نمبر ہوئی ہے. سمجھنا ہے نہیں. اور جب ان کو دے رکھا ہے اور صرف وہ دنیا کے لیے دے رکھا ہے اور تمہارے لیے تو آخرت میں رکھا ہے، جب آخرت میں رکھا ہے تو پھر تم دنیا میں اس کی حرص کیوں کر رہے ہو؟ دنیا میں اس کی حرص نہیں کرنی چاہیے. آج بخاری شریف میں آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ قطع تعلق کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر اور کسرا اللہ کے دشمن ہیں. کیسر رومن امپائر اور ایرانی امپائر، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں. ساری راحتیں ان کے پاس ہے، مکان، جائیداد، اور آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں اور آپ کے پاس نہ بستر ہے، نہ گدا ہے، نہ چٹائی ہے، نہ کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. کر رہے عمر کو ابھی تک سمجھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری نعمتیں آخرت میں رکھی اور ان لوگوں کے لیے صرف دنیا میں ہے. اس وجہ سے دنیا میں ان کو ملی. اور یہ دنیا کی نعمتیں تو چند دنوں کی ہے. چند دنوں کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آگ لگ گئی کہ سارے پیسے ختم، سمجھ میں نہیں. یا کچھ نہیں تو تمہاری زندگی تک ہے، مرنے کے بعد تو تمہارے پاس رہے گا نہیں. تو اس وجہ سے حرص اور لالچ یہ بری چیز ہے. حرص اور لالچ کو دور کرنا چاہیے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی دو چیزیں بڑھتی رہتی ہے، مال پر حرص کرنا اور عمر پر حرص کرنا. آدمی جتنا زیادہ آگے بڑھے گا، جتنی عمر ہوگی، 50 سال، 50 سال سے زیادہ، 60 سال، 60 سال سے زیادہ، 70 سال، 70 سال سے زیادہ، 80 سال، تو اس میں یہ دو چیزیں بڑھتی ہی رہتی ہیں. سمجھا گیا. ان کو 90 سال کے ہو اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی اگر کہوں کہ بھائی اللہ کے راستے میں پیسے کی ضرورت ہے، نکالو 10-10 روپے،
निकालो 10-10 रुपए, नहीं तब भी नहीं निकालते तो क्या करें। और मैं तो इस वक्त चलो ये नहीं समझ में आता तो जाने दो, ये मिसाल अच्छी नहीं है। दूसरी मिसाल है, समझ में आया? बाजार में दारुल इकामा के सामने कोई लारी लेकर खड़ा हो गया और एक एक भुजिया 10-10 रुपए में, एक एक भुजिया 10-10 रुपए में, क्या करोगे? नहीं खाओगे ना। अगर टेस्टी क्या चीज़ है यहाँ टेस्टी है वो भी मुझे मालूम नहीं, क्या टेस्टी होता है? है? है बड़े पाँव, उसमें ये नहीं देखता कि ये क्यों सस्ता दे रहा है या महंगा दे रहा है, फट से निकाल लेता है। और जब हमारा जैसा बुड्ढा कोई वहां पहुंचता है तो कहते हैं, यार 2 वड़े पाव 20 रुपए के बहुत महंगा है, जरा सस्ता कर। फर्क समझ में आ गया। तो इस वक्त में जवानी की हालत में पैसे खर्च करने में नौजवान परेशान नहीं होता, अब्बा का दिया हुआ है, वजीफा मिला हुआ है, निकाला रहा है। और जब यही मेरे जैसा हो जाएगा तो वो सोचेगा कितने का लाया यार, 2 पैसे ज्यादा क्यों दिए। वो माल की मोहब्बत है, ज्यादा माल क्यों गया। तो फरमाते हैं कि जैसे आदमी बड़ा होता है क्या खा रहा है, कोई अच्छी चीज मिल गई खाने में क्या। तो जितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी उतनी लालच बढ़ती चली जाएगी। इस वक्त दूसरी मिसाल भी और बता दूं कि इस वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलो जिहाद के लिए, और नौजवान तैयार हो जाएगा और बूढ़ा होगा तो उसको पहले निकालो नहीं फिर हम जाते हैं। नफ्स की मोहब्बत बढ़ जाती है, समझना है। और इसी तरीके से फिर उम्मीदें भी बढ़ती चली जाती है। शादी हुई, बच्चा हुआ, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 30 हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसको पढ़ाएंगे और उसको शादी करेंगे, फिर उसको बच्चा होगा, फिर उसकी शादी करेंगे, और इसी उसी में वो मौत उसकी आ जाती है। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशान बनाया और कहा कि ये आदमी की जिंदगी है, ये तमन्ना ये तमन्ना ये तमन्ना, एक तमन्ना पूरी नहीं होती कि दूसरी हाजिर, दूसरी पूरी नहीं होती कि तीसरी हाजिर, तीसरी पूरी नहीं समझ में आता। ये तमन्ना हो गई, फारिग हो गए, शादी, शादी हो गए, बच्चा, बच्चा हो गया, फिर तीसरा, समझ में। इस तरीके से बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, यहाँ तक कि उसकी मौत की हद आ जाती है, लेकिन उसकी तमन्ना पूरी नहीं होती, उसकी तमन्ना कबर ही पूरी। तो इस सबसे ज्यादा हिर्स और लालच। एक आदमी था, उसने खामखा ऐलान कर दिया और अशरफिया के पास एक आदमी है जो 100-100 रुपये तकसीम करता है, तुम तो नहीं जाओगे, मजलिस में बैठे हुए हो। और सब भागने लगे 100-100 रुपये लेने के लिए। वो जो था वो भी पीछे पीछे भागने लगा। भाई तू क्यों भाग रहा है, तुम तो झूठी खबर उड़ाई है। ऐसा हो सकता है सच्चा हो। यानी लालच की भी इंतहा। मैंने बहुत सारी चीजें, ये लालच की मिसाल में तुम्हारे सामने जिक्र कर रहा हूँ। इस लालच से अपने आप को बचाने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उम्दा से उम्दा नेमतें जन्नत में तैयार कर रखी है। हिर्स, हकीकत हिर्स माल वगैरह के साथ कल्ब का मशगूल होना। माल वगैरह के साथ, वगैरह इन्होंने भी छोड़ दिया, समझना है। माल के साथ आदमी को दिल लगा हुआ है, अरे कितनी तनख्वाह मिलती है मुझे मालूम, कितनी तनख्वाह मिलती है? 16,000। अरे अशरफिया में 17,000 है। ये माल की हिस्स उसको ले जाते हैं कि वहां 1,000 है, वहां 2,000 है, समझना। तो इस तरीके हमारा सब काम है, तो जहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं वो काम करने के लिए तैयार। तो एक तो माल के साथ आदमी को मोहब्बत ज्यादा होती है, और इनके अलावा दूसरी चीज बीवी बच्चे ये वो सब उसी में दाखिल है, हिर्स में। क्योंकि आप लोगों को हिर्स से पाक है, इसलिए सारी मिसालें बयान करने की जरूरत नहीं है जी। हिर्स तमाम बीमारियों की जड़ है। हिर्स तमाम बीमारियों की जड़, जितने अखलाक रजीला है, समझना। अगर तुम्हें हिर्स है, लालच है, और तुम्हें मालूम है कि यहाँ
मुझे मेरी लालच पूरी होगी। झूठ बोलना आसान, वादा खिलाफी करना आसान, धोखा देना आसान, वो हिर्स पूरी होगी। सब बीमारियों की जड़ हो गई कि नहीं? जी। ये ऐसा मर्ज है कि इसको उम्मुल अमराज कहना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से झगड़े फसाद होते हैं, इसी की वजह से मुकदमा बाजियां होती है। अगर लोगों में हिर्से माल ना हो तो कोई किसी का हक न दबाए। अगर माल की लालच नहीं है, समझ में, तो इसने 100 रुपये ले लिए, ले ले, एक कागज ही खत्म हुआ ना। लेकिन वो कागज कीमती है, इस वजह से 5 भी ले लेता। अरे कैसे लिए इसने, समझ में आया नहीं? तो ये हिर्स तमाम बीमारियों की जड़ है। सारे झगड़े इसी वजह से होते हैं, सारा इख्तिलाफ इसी वजह से होता है, और आदमी लालची बन जाता है। तो लालच से सबसे ज्यादा अपने आप को बचाने की जरूरत है। जी। बदकारी का मंशा भी लज्जत की हिर्स है, अखलाक रजीला की जड़ भी यही हिर्स है। मजा आएगा। जी। क्योंकि आरिफीन का कौल है कि तमाम अखलाक रजीला की असल किब्र है, और किब्र हवस जाही का नाम है। बस किब्र का यानी मंशा सबसे बड़ी बुरी आदत जो होती है वो किब्र है, तकब्बुर है। लेकिन तकब्बुर भी आदमी में उसी वक्त आता है जब लालच के जरिए से वो उस दर्जे पर पहुंच गया। इस वजह से हिर्स से बचने की जरूरत है। जी। इंसान हिर्स इंसान का तबई खासा है। अगर उसके पास माल के 2 जंगल भी हो जिनमें सोना या चांदी पानी की तरह बहते हो, फिर भी वो तीसरे का तालिब होगा। तो समझ में आ गई होगी कि आदमी को हिर्स माने लालच, पैसे की लालच हुई, माल की लालच हुई, किसी और की बीवी की लालच हुई, आज इसके साथ शादी की, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, चौथे के साथ, यही हिर्स में वो करता रहता है। और यही हाल क्या है, माल के मुतालिक भी है कि माल जैसा माल बढ़ता रहेगा, हदीस पाक में भी आता है कि अगर आदमी के पास दो दो खेत सोने चांदी के भरे हुए हो, ये समझ में आ गया। अगर कोई आदमी दिन में रोजाना 1,500, 2,000, 10,000 रुपये कमाता हो, 10,000 रुपये कमाता हो, तो रोजाना तो नहीं जाएगा ना दुकान पर के, जाएगा जाएगा अरे भाई 10,000 मिलते हैं, क्या काम है, 10,000 से तो महीना चल जाता है। अरे महीना चले कि न चले, मुझे तो और चाहिए। ये हिर्स या लालच है उसको ज्यादा काम पर, दुनिया में मसरूफियत पर, माल के ऊपर मशगूल करता है। वो करोड़पति भी करोड़पति भी वो इतना ही भिखारी होता है जैसे कुछ ना हो, और वो होता है। समझ में आया? तो ये सब हिर्स की कारोबारी है। जी। जितना हवस को पूरा करोगे उतना ही बढ़ेगी। जैसा कि खारिश वाला जितना खुजलाता है, खारिश बढ़ती जाती है। और हिर्स यानी लालच, ये हवस है, ख्वाहिश है, इसको जितना बढ़ाओगे वो बढ़ती चली जाएगी। समझ में? मेरी दादी थी, वो कहा करती थी कि नौम, सोना और खाना जितना बढ़ाओगे इतना बढ़ता चला जाएगा। अभी तुम 8 घंटे सोते हो, 9 घंटे सोने की आदत डालो, 10 घंटे सोने की आदत डालो, 11 घंटे सोने की आदत डालो। और वो हज़रत शेख का खादिम का मैंने मकुला नकल किया था, समझ में आया नहीं? भूख की वजह से तो नींद भी नहीं आती, और फजर के बाद सोया था वो, असर के वो भूखा हुआ। समझ में आया नहीं? तो ये हिर्स है, इसमें आदमी इसमें मशरूब हो जाता है, तो यही होता है। ठीक। हक ताला का इरशाद है, अम्लिल इंसानी मा तमन्ना, भला इंसान की हर आरजू पूरी हो सकती है, यानी कभी पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि कभी हरीस को राहत नहीं मिल सकती। हरीश लालची आदमी, उसको कभी सुकून मिलेगा ही नहीं। सामने वाला दुकान 9:30 बजे खोलता है तो 9:15 ये खोले। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि भाई जो नसीब में मिलना है वो तो मिल के रहेगा ना। समझ में आया? तो हर वक्त हरीश आदमी जो होता है हिर्स के चक्कर में घूमता रहता है, हिर्स की तकलीफ में मुब्तला रहता है। इस वजह से हिर्स से बचने की जरूरत है, लालच से बचने की जरूरत है। उसकी हवस के पेट को मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। मर जाएगा तभी उसकी हिर्स लालच खत्म होगी,
वरना खत्म ही नहीं होती। बहुत सारे लोगों को देखा कि BMW इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्सिडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये मॉडल, इससे ऊपर का मॉडल, इससे ऊपर का मॉडल, इससे ऊपर का मॉडल बढ़ती चली जाती है लालच। जी, एक आरज़ू खत्म नहीं होती, एक दूसरी। जैसे मैंने मिसाल बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निशान करके बताया था कि ये आदमी की जिंदगी है यहाँ पर, और फिर ये उनके तमन्ना है, ये तमन्ना, ये तमन्ना, ये तमन्ना, ये तमन्ना, और हर एक की तमन्ना हुआ करती है। एक तमन्ना पूरी नहीं होती कि दूसरी तैयार, दूसरी पूरी नहीं होती कि तीसरी तैयार, और इसी में जिंदगी चली जाती है, और जिंदगी खत्म होती है लेकिन तमन्ना खत्म नहीं होती। मैंने बताया था कि बच्चा, अभी तो यही तमन्ना होगी शादी हो जाए, हो गई, फिर आएगा बच्चा हो जाए, हो गया, फिर बच्चे के बाद उसकी सही तरबियत हो जाए, हाफिज हो गया, अलीम हो गया, फिर उसके बाद उसकी भी शादी। अरे अपने बेटे की शादी कराने की तमन्ना है कि नहीं है? अब उसको भी बेटा हुआ, बेटा होने के बाद मतलब एक ही बात है, बदू છે कोई हाफिज थी जाए, पोतरो पोतरा, ये चलता ही रहेगा। ये पोतरा हाफिज भी हो गया, फिर पोतरे की शादी की फिक्र आएगी। यानी एक तमन्ना के बाद दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ये सब मुनसलक है और हर एक आदमी में होता है, ये नहीं कि किसी में ना हो। जिनका दिल साफ नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ जी। एक आरज़ू खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, और जब तकदीर पर राजी ही न हो तो हर काम में यूं दिल चाहता है कि ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। और तकदीर के ऊपर अगर तुम्हारा एतमाद है और ये मानते हो कि तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, और मैंने जितना लिखा है वही मिलेगा, तो आदमी जितना मिलता है उसके ऊपर सब्र करता है। लेकिन जो तकदीर ही को नहीं मानता, मैं अपनी होशियारी से इतना कमा लेता हूँ, मैं अपनी होशियारी से ऐसा कर लेता हूँ, तो सारे दूसरे बुद्धू है, मैं तो ऐसा बड़ा जबरदस्त ताजिर हूँ, समझ में आया नहीं? तो ये आदमी हमेशा हिर्स में लगा रहेगा और कभी मुतमईन नहीं होगा। जैसे मैंने अभी मिसाल बयान की कि हमारे पास तो इतना नहीं है, लेकिन जिनके रोजाना की 1 लाख रुपए की आमदनी है, वो भी कोशिश करता है कि और मुझे मिलनी चाहिए। सही जी। जब तकदीर पर राजी ही न हो तो हर काम में यूं दिल चाहता है कि ये भी हो जावे और वो भी हो जावे, और सब उम्मीदों का पूरा होना दुश्वार है, इसलिए नतीजा इसका परेशानी ही परेशानी है। वो जाहिर में औलाद और माल सब कुछ हो, मगर हरीस का दिल हमेशा परेशान रहता है। औलाद है, माल है, रोटी है, खाना है, पीना है, सेहत है, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, लेकिन हिर्स है तो उसको कभी चैन नहीं आएगा जी। तरीके इलाज, खर्च को घटाए ताकि ज्यादा आमदनी की फिक्र न हो, और आइंदा की पहली फिक्र। बात यही बताया कि भाई तुम्हारा खर्च कितना है, कि 50,000 महीने का खर्चा है, इस खर्च में कमी करो, 40,000 करो, तो फिर तुमको 60,000 कमाने की तमन्ना नहीं है कि जितना आता है काफी। लेकिन ये हमारे लिए इसलिए नहीं चलता कि हम अपने खर्च के लिए नहीं कमाते, बैलेंस के लिए कमाते। कोई रन हर मुकी जवाहर, औलाद के लिए छोड़ जाने के लिए कमाते हैं जी। और आइंदा की फिक्र न करे कि क्या होगा। यही फिक्र है, कल को कोई जरूरत पेश आ गई, बीमारी हो गई, शादी का मौका आ गया, पोते की शादी का मौका आ गया, बेटी के शादी का मौका आ गया, और पैसे नहीं होगा तो क्या होगा, तो पहले ही से पैसे जमा करो, और हिर्स में लग गया वो जी। और ये सोचे कि हरीस हमेशा जलील रहता है। हरीश हमेशा जलील भी रहता है, इसलिए कि अपनी हिर्स और लालच को पूरा करने के लिए जिसके सामने जाएगा सर झुका देगा। अगर इसको मालूम होगा कि यहाँ से मुझे 1,000 रुपये मिलने वाले हैं, समझ में आया नहीं, या 1,000 रुपये का फायदा होने वाला है, तो फिर उस सूरत में वो कहेगा कि मेरे जूते साफ करो, सब करने के लिए तैयार, बैठ जाओ, नीचे बैठो, सब कुछ करने के लिए तैयार। ये हिर्स की वबा है जी। हकीकत तमा, तमामन लालच, खिलाफ शरीयत उमूर को पसंद करना ख्वाहिश नफसानी और हकीकत शहवत है। इसका आला दर्जा कुफ्र और शिर्क है, वो तो इस्लाम ही से खारिज कर देता है, और जो अदना दर्जा है
وہ کمال اتباع سے ڈگمگا دیتا ہے۔ ہر طمع و خواہش نفسانی میں یہ خاصیت ہے کہ راہ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ تما مانے لالچ، اس لالچ میں آدمی جب کسی لالچ میں پھنس جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے لکھا ہے کہ اندلس اسپین اسلامی ملک تھا پہلے، اور ایک شیخ تھے اندلس کے بھی سب سے بڑے شیخ الحدیث، اندلس میں پارسی وہ نصرانی رہا کرتے تھے، اور ان شیخ کے بڑے بڑے خلفاء علامہ شبلی وغیرہ بڑے بڑے جو پرانے ہیں، اتنے بڑے وہ شیخ تھے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک نصرانی لڑکی پر دل آ گیا، دیکھ نظر پڑی دل آ گیا، یہ تو ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں، کیوں ہوا ہے دل ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں، کب آ جائے کس پر آ جائے کون پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ بھائی شادی تو کر سکتے ہوں لیکن تم کو نصرانیت اختیار کرنی پڑے گی، ہماری سوروں کو چرانا پڑے گا، منظور۔ جس لکڑی کے ٹیک لے کر شیخ الحدیث صاحب پڑھانے جایا کرتے اس سے وہ کنجور کو لمبا قصہ ہے، اس میں سے مختصر حصہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا ہے، کیوں ہوا کیسے ہوا یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ جب آدمی کسی لالچ میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی ارشاد باری ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ہوا کی خواہشات کے پیچھے مت پڑو، خواہشات کے پیچھے پڑو گے تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا، اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی۔ اور ارشاد نبوی ہے وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، یعنی عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے اور پھر خدا سے نیک اجر کی امید رکھے۔ بیوقوفی ہے، ایک تو خواہشات نفسانی کے مطابق کام کرتے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، اپنی خواہشات کے بل سونا ہے تو سو گئے، فجر پڑی ہے نہ پڑی کوئی غرض کی بات نہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھو، نیک کام کرو اور پھر امید رکھو تو ایک بات ہے، لیکن نیک کام نہ کرو اور برے کام میں لگا رہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرو، یہ کیسے صحیح ہے؟ جی علاج طمع مجاہدہ کرنا ہے، یعنی مخالفت نفس کی عادت ڈالے۔ یعنی نفس جو چاہتا ہے، نفس ہر وقت کچھ نہ کچھ نفس چاہتا رہتا ہے، تمہیں اپنے نفس کی چاہت کو چھوڑنا ہے، سمجھ میں؟ نفس چاہتا ہے کہ ابھی چائے پیو تو اور سمجھ میں، نفس چاہتا ہے کہ ابھی کھا لو تو نہ ابھی مغرب کے بعد کھاؤں گا، تو اس طریقے سے نفس کی مخالفت کرو، مخالفت کرتے کرتے پھر جو نفس چاہتا ہے اسے معلوم ہو جائے گا کہ میری ساری آرزو تو پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جی تاکہ نفس کی جانی و مالی خواہشات و مرغوبات کو رضائے حق تعالیٰ کے مقابلے میں مغلوب رکھا جا سکے۔ نفس کی جانی خواہشات، مالی خواہشات یا جو بھی ہے، اس کو نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرنے میں نفس کو لگاؤ، نفس کی خواہشات کو پورا مت کرو۔ میں نے ابھی بتایا کہ نفس کی خواہشات کھاؤ، مزے کرو، یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، بعض آدمی اس کا منہ چلتا ہی رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں؟ تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہے نفس کی، اس کو تم کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، جب یہ کنٹرول کرنا سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ ہرس، لالچ اس پر بھی کنٹرول ہوگی، ورنہ تم نفس کو آزاد چھوڑ دو، جو چاہے جو مانگے جس طرح کرنا چاہے سب کرنے دو، اور پھر یہ تم کہو کہ نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، نفس کنٹرول میں نہیں آتا۔ جی اور مجاہدہ نام ہے نفس کے تقاضوں کو روکنا، بتکلف ہو یا بلا تکلف۔ تکلف کے ساتھ رکھنا پڑے یا بلا تکلف، نفس جو چاہتا ہے اس سے روکو، یہ ہے مجاہدہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، یعنی ہم لوگ جہاد اصغر
जिहाद असगर लड़ाई, हालांकि इसको जिहाद असगर कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लौटे जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ, और जिहाद अकबर है अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। नफ्स जो मांगता है मत दो उसको, नफ्स जो खिलाफ शरअ चीज मांगता है बिल्कुल ना दो उसको, नफ्स जो जायज चीजें भी मांगता है उसमें भी कटौती करो, समझना है नहीं। 2 रोटी की जगह पर 2.25 रोटी खाओ, नफ्स को कंट्रोल में करना है तो। जी गुस्सा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और गुस्से को जब्त करने वाले और लोगों की तकसीरात से दरगुजर करने वाले, और अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को महबूब रखता है। अब तीसरा दो दो तो हो गए, और अभी तीसरा नंबर है गुस्सा का। हर आदमी गुस्से में भरा पड़ा ही होता है नहीं। ये दूसरी बात रही कि मेरा तुम पर चलता नहीं इसलिए मैं गुस्सा करके बैठ जाता हूँ, और अगर चलता होता तो क्या होता है वो देखो दूसरी जगह पर, है क्या नहीं। गुस्सा आ जाता है तो मारना शुरू कर देता है, पीटना शुरू कर देता है, कुछ भी तो ये एक है गुस्सा। इस गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से पर कंट्रोल करने वाले अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक आदमी को गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, ये गुस्सा शैतानी चक्कर है, इस वजह से शैतानी असरात भी उस पर तारे होने शुरू हो जाते हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, नथने फूल जाते हैं, समझना। आदमी को इंतहाई दर्जे में जब गुस्सा आए तो हम लोग को बिल्कुल बेचारे परहेजगार लोग हैं, गुस्सा आता ही नहीं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आदमी को गुस्सा आता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या नहीं, ये शैतानी चक्कर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी को चक्कर आया, गुस्सा आया, सुर्ख हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर कहा कि मुझे एक चीज मालूम है, अगर ये आदमी इस वक्त पढ़े तो ये सारा चक्कर खत्म हो जाए, और वह है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से पनाह चाहना। वो इतने गुस्से में था तो उन्होंने कहा मैं कोई बेवकूफ गांडा थोड़ा हूँ, अरे तेरा ये कहना कि मैं गांडा थोड़ा हूँ एक गांडे की अलावा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ये शैतानी चक्कर है गुस्सा, और शैतान को दूर करने के लिए बताया गया है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो, ठंडक हो जाएगी और गुस्सा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये गुस्सा शैतानी चक्कर है, शैतानी असर है। बाद आदमियों को तो इतना गुस्सा आता है तो ये कहते हैं कि ये तो हवा से भी लड़ता है, समझ में आया नहीं। ये मसल मशहूर है ये। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तग़ज़ब, यानी गुस्सा मत कर। हकीकत गुस्सा खून कल्ब का बदला लेने के लिए जोश मारना गुस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा पहलवान और ताकतवर वो नहीं है जो क्या पढ़ा तुमने? खून कल्ब का बदला लेने के लिए जोश मारना। खून खून कल्ब, खून 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 कल्ब, कल्ब हाँ का बदला लेने के लिए जोश मारना। बस, खून कल्ब का बदला लेने के लिए जोश मारना, यानी दिल जो है उस दिल को जोश आता है, वरना दिल में जो खून होता है वो तेजी के साथ होता है, जिसको तुम ब्लड प्रेशर कहते हो यार, खून कल्ब वही ब्लड प्रेशर, समझ में। ब्लड प्रेशर का एकदम बढ़ जाना समझ में आदमी को गुस्से के इंतहा पर ले जाता है। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा पहलवान और ताकतवर वो नहीं है। ने फरमाया कि पहलवान कौन है, बड़े से बड़े आदमी को पछाड़ दे, तुम इसको पहलवान कहते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहलवान नहीं, पहलवान तो ये कि तुम्हें गुस्सा है, समझ में, गुस्सा है, और गुस्सा आने के साथ एक दूसरी कैद भी जरूरी लगा दो कि उसके ऊपर गुस्सा उतारने की ताकत हो, वरना भी तुम्हें गुस्सा आ जाए मुझ पर तो दबा के बैठे रहोगे, करोगे क्या, समझना नहीं।
गुस्सा आ जाए और बदला लेने की तुम में ताकत हो और उस वक्त में गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, ये पहलवान से भी ज्यादा था। अगर बदला लेने की पहले से ही ताकत नहीं है तो फिर कितना ही गुस्सा करते रहो, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, बदला लेने की ताकत हो, 2 थप्पड़ मारेगा, 4 मारेगा, 8 मारेगा और 1 गिनेगा। जी। बड़ा पहलवान और ताकतवर वो नहीं है जो लोगों को पछाड़े, बल्कि कवि और पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना, ये बहुत बड़े पहलवानों को पहलवानी में कितनी मशक्कत है, कितनी मेहनतें करनी पड़ती है। इस तरीके से गुस्से के वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आदमी ये समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, सबसे बड़ा हूँ, और इसी वजह से वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उस वक्त उसको ये सोचना चाहिए कि मुझ में तो कुछ भी ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर इसी वक्त लकवा मार दिया तो समझ में आया कि नहीं? जी। एक रिवायत में है, कवि वो है जो गुस्से का मालिक हो, यानी गुस्से पर गालिब हो। ये न हो कि गुस्से के मंशे के मुताबिक फौरन अमल करे, यानी गुस्से का मंशा क्या है? सामने वाले को मारना पीटना, गुस्से का नाराज हो जाना। जी। बल्कि उसको शरीयत की तालीम के मुताबिक इस्तेमाल करे, इसलिए कि गुस्से में जोश पैदा होना तबीई अम्र है। गुस्से में जोश, बदन में जोश पैदा हुई, बताया ना, खून बहुत जोरदार बढ़ना शुरू हो जाता है, पंपिंग जोरदार शुरू हो जाती है। इस वजह से उससे आदमी के चेहरे पर भी सुर्खी आ जाती है, दिमाग पर भी दिमाग में भी उसको एक किस्म का जोश आ जाता है। क्या गुस्से में इंतहा में क्या बोल जाता है, क्या कर जाता है, वो भी पता नहीं चलता। गुस्से में जोश पैदा होना तबीई अम्र है, इसमें मलामत नहीं, मगर इंसान को खुदा ताला ने इख्तियार भी दिया है, इसलिए उसको रोकना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि कितना ही तुम्हारे बदन में जोश उभरे, लेकिन तुम उसको दबाना चाहो तो दबा सकते हो। मैंने अभी बताया, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हुए हो फिर गुस्सा आ जाए, पानी पी लो, समझ में आए नहीं? तो उस सूरत में ये गुस्से के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। जी। इस इख्तियार को सर्फ न करना इंसानियत के खिलाफ है। गुस्से को भी हक ताला ने बहुत सी मसलिहतों से इंसान की सरिश्त में दाखिल किया है। इससे अभी बहुत सवाल ये पैदा होता है, जब ये बुरी चीज है तो गुस्सा है क्यों? समझ में आया नहीं? ये अखलाक रजीला में है, तो ये इसकी जरूरत क्या है? ताकि ये भी बाज मर्तबा अखलाक हसना के शुमार में आता है, वरना अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों के खिलाफ या हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई आदमी बोल रहा हो और तुम चुपके से बैठे रहो, अच्छा कहा जाएगा कि नहीं? क्या कहा जाएगा? शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिल में जरा सा भी एहसास नहीं है कि ये हुआ और तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आया? तो ये गुस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए रखा है, वरना ताकि कभी फूफा भी की जाए। मैंने मिसाल बताई थी हज़रत थानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, कि कोई सांप किसी पीर साहब से मुरीद हो गए, पीर साहब ने कहा देख किसी को काटियो मत, तो उसने छोड़ दिया कि मैं काटने का नहीं। अब जब काटने का नहीं तो फिर दूसरे काटने वाले उसके ऊपर सवार हो गए, ये तो आपके काटने का तो है नहीं, परेशान हो गया, जो भी होता है उसको परेशान कर रहा है। वो पीर साहब के पास गए कि आपने जो बताया था काटना नहीं, यहाँ तो चींटी भी मुझे काट रही है, परिंदा भी टोंक मारकर चला जाता है। तो फरमाया कि अल्लाह के बंदे, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फूफा करने से मना किया था। अरे फूक करके फूक मारता तो वो भाग जाता, वो मरना है। तो अपनी हिफाजत के लिए भी इसकी कभी न कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन लिमिटेड में इंतजार में। इससे बहुत से काम निकलते हैं, अच्छा, लेकिन इख्तियार को भी साथ साथ रख दिया है कि जिस जगह गुस्से का काम हो वहां काम ले, और जो जगह गुस्से के काम की नहीं वहां काम न ले। आज तुम लोगों के लिए यही बात है, इनने जो कहा तो मुझे याद आ गया। नहीं, हमारे जमाने में तो मदरसे में वो लेकर की लकड़ियां लाकर रखी जाती थी मदरसे में, जान नहीं आया, सटासट इतनी पड़ती थी कुछ न पूछो। और अब यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम भी समझते हो कि ये काटने का तो है नहीं, फुफात करेगा।
जाने दो, इसकी हुआ को कौन सुनता है। और इसी वजह से कितनी अच्छी इस्तीदादें देख ली। गुस्से की जरूरत है कि नहीं? अरे जरा सा डांट डपट होती तो उसमें होता। और अब हमारी गवर्नमेंट यहाँ भी आ रही है ऐसा ही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो और आगे बढ़ गई। मकतब में भी तुम उस लड़के को नहीं डांट सकते। मकतब में अगर तुमने लड़के को डांटा और उसने मोबाइल पर नंबर 100 लगाया तो पुलिस आकर पकड़ जाएगी। वो तो उस्ताद की बात है, बाप अपने बेटे को नहीं डांट सकता। यहाँ भी आ रहा है, घबराओ मत, समझ में आया नहीं? क्या अखलाक होंगे, क्या आदत होंगी फिर, समझ में आया? तो गुस्से की जरूरत तो है लेकिन लिमिटेड। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आदमी हवा के साथ भी लड़ता फिरे। जी, गुस्सा फी नफ्सी गैर इख्तियारी है, लेकिन उसके इख्तिजा पर अमल करना इख्तियारी है। गुस्से के तकाजे पर अमल करना ये इख्तियारी है। इसलिए गुस्से का तकाजा है, बैठ जाए कि चल भाई जाने दो। जी, इसलिए इसका तर्क भी इख्तियारी है और है? इसका तर्क भी, इसलिए इसका तर्क भी इख्तियारी है हाँ, यानी उसको तर्क करना भी इख्तियार में है। और इख्तियारी का इलाज बजुज इस्तेमाल इख्तियार के कुछ नहीं, वो इसमें कुछ तकल्लुफ व मशक्कत भी हो। चल मैंने कई मरतबा बता दूंगा। इसी इस्तेमाल की तकरार और मुदावमत से वो इख्तिजा ज़ईफ हो जाता है। यानी जब इसको तुम अमल करोगे, तुम गुस्से को डांटोगे, डटोगे, रोकोगे, तो फिर गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा और फिर बेइख्तियार तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। अभी मैंने याद आया, वो मैंने कहा था, पहले मैंने बताया था, हज़रत थानी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक किताब है तरबियतुस सालिक के नाम से, तो उसमें लोगों के खुतूत है, हज़रत थानी ने उनकी इस्लाह जो की है वो सारी चीजें हैं। उसमें लिखा है कि हज़रत मामूलात की पाबंदी नहीं हो रही है, तो हज़रत वो मुस्तकिल खत नहीं लिखते थे, लकीर खींचकर ये वजह क्या है, अब ये खत जाएगा, उसके बाद पहुंचेगा, अब वो वजह क्या है पर लिखेगा सुस्ती, बोलना। अब वो फिर हजरत के पास खत जाएगा, तो हजरत ने फिर उसके नीचे लिखा कि सुस्ती का इलाज है चुस्ती। सुस्ती का इलाज है चुस्ती। इसमें हमसे क्या करना है, खुद ही करो। अरे जब तुम सुस्ती आती है तो तुम सुस्ती को छोड़ो, सुस्ती तो छोड़ सकते हो, तो तुम्हारे इख्तियार में है। तो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के इसमें तरबियत में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जैसा कि यहाँ पर कहा गया। जी, इसी इस्तेमाल की तकरार और मुदावमत से वो इख्तिजा ज़ईफ हो जाता है। वो इख्तियार ज़ईफ हो जाता है जो गुस्से को बढ़ावा देता है। जी, और उसके तर्क में ज्यादा तकल्लुफ नहीं होता। और फिर उसके तर्क में ज्यादा तकल्लुफ नहीं होता, इसलिए कि नफ्स को आदत पड़ी हुई है कंट्रोल की। अलबत्ता इस इख्तियार के इस्तेमाल में कभी कदर तकल्लुफ होता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है, ला यक़ज़ियन्न क़ाज़ी बैन इस्नैन व हुवा ग़ज़बान। हाँ, यानी काजी को भी उस वक्त फैसला नहीं करना चाहिए जब वो गुस्से में हो, इसलिए कि गुस्से में दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता और कुछ न कुछ गहरे गहरे लिखा जाया करता है। जी, मतलब यह है कि हाकिम को चाहिए कि गुस्से की हालत में फैसला न करे, बल्कि उस वक्त मुकदमा मुलतवी कर दे और तारीख बढ़ा दे। यहाँ हाकिम से मुराद हर वो शख्स है जो जिसकी अपने मुतालिक, तुम भी हकीम हो, कुल्लुकुम राइन कुल्लु राइन मसऊलुन बिन रइयतिही, इस वजह से तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जी, जिसकी दो आदमियों पर हुकूमत हो, इसमें मुअल्लिम और उस्ताद और घर का मालिक भी शामिल है। लिहाजा गुस्से की हालत में बच्चों या दीगर मातहतों और कमजोरों को किसी जुर्म पर भी सजा देने में जल्दी न करे, बल्कि गुस्सा फिरो होने के बाद गुस्सा खत्म हो जाए, एकदम गुस्सा आ गया हो, उस वक्त न करे, वरना उस वक्त न मारे, न कुछ करे, न कुछ, बैठा रहे। फिर जब गुस्सा नरम हो जाए, ठंडा हो जाए, दिमाग में गर्मी आ जाए, उस वक्त भी कहा कि देखो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जी, और याद रखे कि जिस हक का मुतालबा करने वाला कोई ना हो, उसका मुतालबा हक ताला की तरफ से होगा। बेचारे तलबा हैं, मारो जिसमें मार लगो, ये कुछ नहीं कर सकते, कोई इनके पास हथियार नहीं है, कोई उसके पास मुतालबा नहीं है। कहा ठीक है, लेकिन अब उनको बताया गया असातिज़ा को कि जिनके लिए कोई मददगार नहीं है, अल्लाह सबका हामी है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुमको जवाब देना पड़ेगा कि इसको क्यों मारा,
ज्यादा क्यों मारा? गुना तो इतना था, मारा क्यों इतना? 5 पैसे गुम हो गए तो तुमने मारा इतना, जैसे 5 रुपए गुम हो गए हो, तो गलती की या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो हर एक का हिसाब होना है, ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, यही सब कुछ होगा। यहाँ तक कि अगर काफिर जिम्मी पर चल जल्दी कर यहाँ तक कि अगर काफिर जिम्मी पर कोई हाकिम जुल्म करे तो हदीस में आया है कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ से मुतालबा करेंगे क़यामत के दिन कि भाई ये जिम्मी हमारे तहत रहता था, तो तुमने उसका हक अदा नहीं किया, तुमने उसके साथ ज्यादती की, गलती की, क्यों ऐसा किया? अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। तालिब इल्म को, तालिब इल्म था, पढ़ने के लिए आया था, उसका बेचारा कोई जवाबदेह नहीं था, कोई उसका ये मुतालबा करने वाला नहीं था, तुमने उसको इतना मारा क्यों, इतना पीटा क्यों? अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा सजा देने के वक्त एहतियात लाजमी है, और अगर तबीई तौर पर गुस्सा ज्यादा हो और जरा सी बात पर हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता हो कि उस वक्त अक्ल ही न रहती हो, तो जिस पर गुस्सा किया जाए बाद गुस्सा हो जाने के मजमे में उसके उसके सामने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, बल्कि उसके जूते अपने सर पर रख ले। एक दो बार ये इलाज है इसका। एक दो बार ऐसा करने से नफ्स को अक्ल आ जाएगी। अब वो गुस्सा करना छोड़ देगा, अरे भाई माफ करना, गलती हो गई, ला तुम्हारे जूते मेरे सर पर रख दो, करके देखना 2-4 मरतबा, फिर खुद ब खुद ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये क्या होगा जी? कौल या फेल में हरगिज ताजील न करे, बतकल्लुफ इस तकाजे की मुखालिफत करे, जब कोताही हो जाए इस्तिगफार करे, और अगर किसी शख्स के हक में ज्यादती व हुदूद शरिया से तजावुज हो गया हो तो उससे माफ कराए, जुबान से औज़ुबिल्लाह पढ़े, अगर खड़े हो तो बैठ जाए, गुस्सा आ जाए तो औज़ु पढ़ो, सबसे पहले औज़ु पढ़ो, और फिर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और बैठे हो तो लेट जाए, हदीस का इलाज है जी। और ठंडे पानी से वुजू कर डाले या ठंडा पानी पी ले, फौरन किसी काम में लग जाए, बिलखुसूस मुताले कुतुब में मसरूफ हो जाए। तो वैसे भी नहीं करते तो क्या मुताला, वैसे भी नहीं पढ़ते, एक भी किताब नहीं देखते जी। अगर इससे भी गुस्सा न जाए तो उस शख्स से अलहदा हो जाए या उसको अलहदा कर दे। ये अच्छी चीज है, मियाँ बीवी के दरमियान भी जब कलश हो जाती है, समझ में बहुत अच्छा है, मेरे पास एक तावीज़ ले जाना, अच्छी बात है। वो तावीज़ आई, ताकि इसको क्या करना है कि जब तुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आए ना, शोर बोल रहा हो तो तेरे बोलने का जी चाहेगा, उस वक्त उस तावीज को 2 दांतों के दरमियान दबा देना, लेके तावीज था दबा दिया। जब तावीज दोनों दांतों के दरमियान दबाएगी तो औरत बोलेगी क्या, और जब औरत बोलेगी नहीं तो वो गधा क्या बोलेगा, वो भी चुप हो जाएगा। नहीं तो लड़ाई तो उसी वक्त होती है कि वो कुछ कहे वो कुछ कहे, समझ में आया नहीं? तरीके इलाज चोर इतना काफी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। इसको जाया ना करो, बल्कि जब भी गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, वहाँ से चले जाओ, ठंडा पानी पी लो, औज़ु पढ़ो।